नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपका ये प्रोग्राम लेकर, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें कोविड से जुड़े कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी शंका आपके मन में हो उसका समाधान आपको हो सकता है, और किसी भी तरह की परेशानी आपको हो आप डॉक्टर से यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ होता है। आपको सिर्फ जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर फ़ोन करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो नंबर पर कॉल करिए। अभी डॉक्टर हमसे जुड़ने वाले हैं और इस सफ़र में मेरे साथ रहने वाली हैं मुनमुन। Absolutely, Rama. So welcome to all of you. This is Dr. Speak. It's a live call-in show. You can call us and you can ask your questions on COVID-19 to an expert panel of guests. Two numbers will be flashing on your screen, so you can note them down. Besides that, you can also ask your questions on DD News's Facebook page. You can post your question under the live link of Dr. Speak that you'll be able to see there. And two guests are joining us. Dr. Puneet Kumar Mishra, Professor, Department of Community Medicine, AIIMS, is with us, and soon Professor Dr. Colonel Anil Dhal, Senior Cardiologist, will be with us. Dr. Mishra, welcome to Dr. Speak. You know, your thoughts on the overall trajectory of cases of COVID-19 in India. What we are looking at is that the cases have already reached 9 million, but we are also looking at the fact that it's taken far longer now to reach from 8 million to 9 million compared to what we had seen in mid-September when in India cases were peaking. So would you say that this is a downward decline that is continuing, and is that good news? It would be too early to say anything on that, because there are certain states where cases they are increasing, and because of the festival season and because of the leniency on the part of a lot of people not using adequate measures in certain metros and certain states, the cases they are increasing. The good news is, till now, if you ask me about India, is that despite of all the odds, we were able to keep the mortality rate low. So that is something good, which I would say, and also the overall number which we are getting every day, they are far less than what we were getting a few weeks back. Around 47,000 new cases they are coming every day now. There was a time when we were close to 1 lakh cases every day. So in that sense, yes, that is something good, and we are progressing in right direction. But we should be cautious. I mean, we should not take it that we have won the battle of COVID. It's still going on, and we have to take all the precautions. And if we'll not take the precautions, then it will. The situation would go worse as getting in certain states like in Delhi or in Gujarat or in certain other parts of the country. बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के प्रिकॉशंस जो हैं लगातार उनकी बात कही जा रही है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, राज्यों के साथ समन्वय की मीटिंग भी केंद्र की हुई और दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन दोबारा से जो कुछ राज्यों में इस तरह के संक्रमण के केसेस फिर से ज़्यादा होने की एक जो सूचना मिल रही है, कहाँ पर आपको लगता है कि कहाँ पर ढिलाई होती है? क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार जो टीम्स हैं वो भी भेजी जाती हैं। अब भी केंद्र ने जिस तरह से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत कमान संभाली, मीटिंग ली, उसके बाद जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए, जो दबाव इन केसेस की वजह से आर्थिक स्ट्रक्चर पर या फिर जो मेडिकल स्ट्रक्चर है उस पर पड़ेगा, उसको दूर करने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो आने वाली सिचुएशन है उसको कोप किया जाए। लेकिन अगर हम राज्यों के लेवल से देखते हैं या आम लोगों के लेवल से देखते हैं, तो कहां पर ये जो ढील होती है इसमें कसावट की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा, और बार बार हम विभिन्न जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भारत सरकार भी बता रही है कि ये फैल कैसे रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है, और अभी हमारे पास इसकी कोई भी प्रभावी रूप से कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि उसमें काफी कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, हमें इसे उन्हीं के द्वारा रोकथाम करनी है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क का यूज करना है, अपने हाथों को साफ रखना है, खांसते और छींकते वक्त विशेष प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अभी हुआ क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। देखिए, काफी सारे लोग इस चीज जी, ये तो कोई बीमारी नहीं है लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो इसके लिए कारण है। त्योहार जो आ रहा है, फेस्टिवल सीजन है, उसके वजह से कुछ लोग बाहर निकले हैं,
और जहां आप जैसे भी आप बात कर रहे थे कि भारत सरकार ने कमान संभाली है, टीम भेजी है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही चीज है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है नागरिक लोगों की, जो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनेंगे तो कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप जितने भी प्रयास करेंगे वो उतने सफल नहीं होंगे जब तक कि हमें सारे जो लोग हैं उनकी भागीदारी इसमें होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जनता है उसको समझना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा कि वो जब भी जरूरी हो घर से बाहर निकलना तभी बाहर निकलें, कहीं भी भीड़ ना लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और जो समय समय पे भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, विभिन्न एजेंसियां हैं, आपके चिकित्सक हैं, उनके द्वारा जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, तभी हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें इन सारे जो प्रयासों को पूरी तरीके से बनाए रखना है। अन्यथा जो आप देख रहे हैं दिल्ली में सिचुएशन हो रही है, या गुजरात में फिर से हो गई है, या कुछ अन्य राज्यों में हो रही है, उस प्रकार की चीजें जरूर आएंगी। तो मुझे लगता है सरकार से भी बड़ी जिम्मेदारी इसमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की है, वो अपना योगदान इसमें निभाएं। डॉक्टर मिश्रा, Sonu Devnath is asking on Facebook, when will a vaccine be available? You know, all eyes are on when a vaccine will be available. As per the Serum Institute, for the vulnerable sections like the elderly and healthcare workers, they are saying it's likely to come in by February, for the general population by April. So is 2021 the best case scenario then in India? Yeah, that's what I would say. There are many vaccines which are under different phases of trial. And from the signals which we are getting right now from the different trials, hopefully in the first quarter of or early next year, early months of 2021, we should have one vaccine or other for the use for the high risk population or the frontline workers. बिल्कुल, वैक्सीन से संबंधित सवाल आते हैं क्योंकि एक जो चिंता है लोगों की इसको लेकर, उनको लगता है कि वैक्सीन से जो है इसका एक प्रॉपर इलाज आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम वैक्सीन से पहले की बात करें, वैक्सीन से बाद की भी बात करते हैं, तो उसमें भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि 20 to 30% आपको जागरूकता बनाई ही रखनी पड़ेगी। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो दर्शकों के हैं। अभी हमारे एक दर्शक फेसबुक पर पूछ रहे हैं कि जब हम हाथ धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं तो उस वक्त उसके तुरंत साथ ही जो वायरस है वो डेड हो जाता है या उसमें कुछ टाइम लगता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सैनिटाइज करने के कितनी देर के बाद उन्हें खाना खाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप जहां पर आप साबुन का और पानी का उपयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि साबुन और पानी से अगर आप अच्छी तरीके से हाथ धोते हैं, जिस प्रकार से बताया गया है कि 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को धोएं अच्छे से साबुन लगा के चारों तरफ से, तो उस प्रकार से करने से क्या होगा कि जो भी वायरस है वो उससे आपको हाथों से मुक्ति मिल जाएगी उस वायरस से। जहाँ तक सैनिटाइजर के उपयोग की बात है, सैनिटाइजर हम उस परिस्थिति में कहते हैं अगर आप साबुन और पानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हाथ नहीं धो सकते हैं किसी वजह से, तो उन परिस्थितियों में सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन उचित ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चॉइस दोनों चॉइस है तो क्या करेंगे, तो मुझे लगता है साबुन और पानी ज़्यादा अच्छा उस संदर्भ में ऑप्शन है। Navya Om, a Facebook user, is asking, what are the chances of reinfection, and after how many days of infection can a reinfection occur? Is there an average period when a reinfection could occur? Would it differ from person to person? There are a lot of reports that are coming, and we don't have anything very conclusive as of now. What we are getting, yes, there are certain people where there is a reinfection. There are also cases reported where the same strain of virus has been, found in the person, and ultimately that person died. That case has recently been reported. So we don't know much about the reinfection, that after how many days it is occurring, in what percentages of population it is occurring, whether it is with the same virus or with a different kind of, mutated virus, and what kind of immunity and other symptoms, they are severe or less severe, because there are different kind of reports which are there. So we are not very sure about all these things, but yes, there are evidences that in certain people reinfection has been found. There is no defined period.
about after how many days they got the reinfection or immunity last, because this all this depends on the number of days immunity last. We don't know that after COVID infection whether immunity lasts for 3 months or 1 month or 6 months. So these things they need to be researched, and research is going on. So probably it will take some more time before we can say something very conclusive about this thing. बिल्कुल, कहने का मतलब है कि सावधानी हर स्थिति में बरतने की ज़रूरत है, चाहे आपको लगता है कि एक बार इन्फेक्ट होकर एंटीबॉडीज़ आपके अंदर डेवलप हो गई हैं या फिर कोविड से बचाव की ज़रूरी है। लगातार जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं, ये कहा जा रहा था कि जब सर्दियां आएंगी तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। कुछ रिपोर्ट्स भी इस तरह से आई थी कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। उसी से संबंधित सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। राहुल शुक्ला इन्होंने पूछा है कि क्या कोल्ड में ये तेजी से फैलता है, और इस वक्त जो ये फैलना शुरू हुआ है कई जगहों पर, तो क्या ऐसा लगता है कि बिल्कुल, और हम आपसे जुड़ेंगे इसी पर, लेकिन फिलहाल there's a breaking news coming in at this point in time. Prime Minister Narendra Modi has tweeted on a review meeting that he took today on the Nagrota encounter that took place in Jammu and Kashmir yesterday, in which all 4 terrorists were eliminated, and that encounter had taken place on the Jammu-Srinagar National Highway. There were unconfirmed reports that these were suspected Jaish-e-Mohammed terrorists. It's a top-level meeting that Prime Minister Narendra Modi held. It was a review meeting in which top ministers and officials were present, and this is a tweet of Prime Minister Narendra Modi. Our security forces have once again displayed utmost bravery and professionalism thanks to their alertness that they have defeated a nefarious plot to target grassroots level democratic exercises in Jammu and Kashmir. This is in the context of the upcoming BDC elections in Jammu and Kashmir, which are going to be held in 8 phases starting from the 28th of November. So the Prime Minister thanking the security forces. It was a joint operation that was carried out yesterday. Prime Minister thanking them for their alertness, saying that they have defeated a nefarious plot to target grassroots level democratic exercise in Jammu and Kashmir. So there are now there can now be fairly concluded that they had planned to attack during the BDC polls and thwart the democratic exercise in Jammu and Kashmir. Sudhakar Das, a correspondent, is with us on the phone line. Sudhakar, Prime Minister Narendra Modi tweeting and thanking the security forces and the brave Jawans for their alertness, in which they've managed to foil a major terror attack, it seems. बिल्कुल, सुधाकर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सुधाकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है मनमोहन। Sudhakar, the Prime Minister has put out 2 tweets. In one, he's thanked the security forces for their bravery, saying that they have defeated a nefarious plot to target grassroots level democratic exercise in J&K. And the Prime Minister also saying that neutralizing of 4 terrorists belonging to Pakistan-based terror organization Jaish-e-Mohammed and the presence of large cache of weapons and explosives with them indicates that their efforts to wreak major havoc and destruction have once again been thwarted. So Prime Minister praising the efforts of the security forces for foiling a major attack, Sudhakar. जी बिल्कुल, देखिए आप बस इस बात की सोच के देखिए कि अगर किसी तरह से ये कश्मीर घाटी में प्रवेश करने में सफल हो जाते और जिस तरह के हथियार इनके पास थे, जितना गोला बारूद था, कितनी बड़ी तबाही मचा सकते थे। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों ने, हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे आर्मी बीएसएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी का परिचय दिया है, जितने बड़े मंसूबों को ध्वस्त किया है, उनके हौसलों को, उनके जो परिश्रम को प्रधानमंत्री की तरफ से सराहना मिली है। और निश्चित तौर पर एक तरह से उन्होंने उन तमाम सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है जिन्होंने इस आतंक फैलाने के, जम्मू कश्मीर में तबाही मचाने के इस बड़े पाकिस्तानी मंसूबे को ध्वस्त किया है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने उनको जानकारी दी गई होगी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद थे। तो उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद के सदस्य थे और एक तरह से इनकी जो पूरी प्लानिंग थी जम्मू कश्मीर में, हमको पता है कि डीडीसी के इलेक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके चुनाव होने वाले हैं और उसको टारगेट करने की ये तैयारी के साथ आए थे। एक तरह से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लगातार जम्मू कश्मीर में बीते कुछ वर्षों से मजबूत किया जा रहा है,
उस ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर हमला करने की फिराक में थे। और बीते इसको सिर्फ एक स्टैंड अलोन घटना के तौर पर भी मुनमुन नहीं देखा जा सकता। बीते 1-1.5 महीनों में जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ कार्रवाइयां हुई है, क्योंकि अब शहरों में उस तरह से हमले करना, सुरक्षा बलों पे हमले करना, उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की फिराक में और कुछ हमले कराए गए ऐसे, ताकि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भाग लेने से लोगों को रोका जा सके, हतोत्साहित किया जा सके। बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो उत्साह लोगों का दिखाई दे रहा है, राजनीतिक दलों का दिखाई दे रहा है, उससे वो जो बौखलाहट बढ़ी है, उसको उस बौखलाहट की वजह से ये बड़ा हमला करने की फिराक में थे, और जिसको सुरक्षा बलों ने हमारे नाकाम किया। उनकी प्रधानमंत्री ने सराहना किया। उन्होंने कहा कि ये जो एक उच्च स्तर की जो बहादुरी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, पेशेवर रवैया सुरक्षा बलों का होना चाहिए, वो जो सजगता मुस्तैदी होनी चाहिए, वो दिखाई दिया है। और इस अलर्टनेस की वजह से ये जो खतरनाक मंसूबे थे, ये जो एक आतंकी डिजाइन था, उसको ध्वस्त किया गया है। चुनाव को जो बाधा डालने की कोशिश थी, उसको नाकाम किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई, आपको याद होगा मुनमुन, बीते साल अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीते साल अक्टूबर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, और हमने देखा था कि उस वक्त 98% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। एक तरह की रिकॉर्ड वोटिंग, उस तरह की वोटिंग जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से अब तक नहीं देखा था। तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, चाहे पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो, या अब डीडीसी के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए जो तैयारी, जो उत्साह दिख रहा है, तो उससे पाकिस्तान को अब ये आशंका उनको लग रही है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंक की वापसी वो जिस तरह से कराना चाह रहे थे, जिस तरह से पिछले 3 दशकों से उन्होंने एक तरह का प्रायोजित आतंकवाद थोपा हुआ था, जिसको कुछ एक तरह से कह सकते हैं गुमराह लोगों को के द्वारा जो है एक तरह से कुछ देश विरोधी ताकतों की तरफ से समर्थन मिला था। अब वो उनका डिजाइन सफल नहीं हो रहा है। न सिर्फ आम लोग वहां के मुखर तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि युवाओं का कुछ जो गिनती के युवा अगर मोहभंग गुमराह होते तो उनका भी मोहभंग हो गया। ऐसे में आतंक का सहारा वो लेने की कोशिश कर रहे थे, और उस आतंक को एक बड़ा और मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने दिया है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने उन तमाम सुरक्षा बलों को, जो तमाम जम्मू कश्मीर में तैनात है, जो अपने जान की कुर्बानी भी कई बार उनको देनी पड़ती है आतंक की चुनौती से निपटने के लिए, उनकी बुरी तरीके से बुरी सराहना की है। बिल्कुल सुधाकर, और इससे जो तैयारी है सरकार की वो भी पता लगती है। जिस तरह से तुरंत ही वो जो हमला था उसे निष्फल कर दिया गया, और जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे वो ध्वस्त कर दी गई। इसके साथ ही जिस तरह से समीक्षा बैठक बुलाई गई है, तो केंद्र की सीधी नज़र है जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम पर, और वहाँ पर जो विकास है या फिर वहाँ पर जो ज़मीनी जनतंत्र है उसको मजबूत करने पर। सुधाकर जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से केंद्र का मानना है, मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है, 2 चीजें हैं। एक तो जब तक एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, आतंक का खात्मा नहीं होगा, एक स्थायी विकास, शांति का रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता, और उसके लिए जो कुछ भी मुमकिन कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। और ये स्पष्ट संदेश न सिर्फ जम्मू कश्मीर में गया है, बल्कि पूरी दुनिया को भारत ने ये दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला किया कि जो आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पीछे 1 हफ्ते पहले दिवाली के समय जिस तरह से सीमा पर जो फ्रीज फायर वायलेशन किया गया, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, उसका किस तरह से जवाब दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, तो स्पष्ट संदेश है। इस तरह की किसी भी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, जो सुरक्षा का पूरा तंत्र है, उसको और मजबूत करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, चाहे सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण की बात हो या आपस में जो कोऑर्डिनेशन, ये देखिए इस हमले को जो विफल किया गया, लंगोटा का जो पूरी योजना जो हमले को विफल किया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि जो हमारे सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि जानकारी मिली थी कि इस ट्रक में इस तरह से आतंकी सवार होकर जा सकते हैं, उसकी वजह से ये इसको न सिर्फ डिटेक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया,
बल्कि इसका खात्मा भी किया गया। तो ये कोऑर्डिनेशन, ये जो सिक्योरिटी ग्रिड बना है बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का, खुफिया एजेंसियों का, ये जो आपसी तालमेल है, ये जो बात हुई है, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और निश्चित तौर पर इस मामले में प्रधानमंत्री की जो मॉनिटरिंग, उनका जो निर्देशन रहता है, बिल्कुल मॉनिटरिंग रोल रहा है। बिल्कुल मॉनिटरिंग, निर्देशन, और केंद्र ने जिस तरह से पूरी नज़र बनाई हुई है इस पूरे जो वहाँ पर घटनाक्रम है, और जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो एक विल है, और जो प्रण लिया है, दृढ़ निश्चय किया है कि जम्मू कश्मीर में न केवल स्थिति समान हो, विकास बल्कि ज़मीनी जनतंत्र मौजूद हो, उसकी पुष्टि होती है। सुधाकर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और डॉक्टर स्पीक में हम आपको बता रहे हैं हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल धल भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर धल, जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही है, जो दर्शकों के प्रश्न हैं उससे संबंधित आ रहे हैं, क्या सर्दी में ये बढ़ेगा? और इसके अलावा हमारे साथ एक और दर्शक हैं, निमिषा नंदा, जिन्होंने कहा है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या इनको लगता है कि ये भी रिस्क पर हैं संक्रमण के? देखिए, जब शुरू में पिछले साल नवंबर में सारी डिटेल्स चीन से आई थी, तो जो पॉपुलेशन जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क था उनमें हाइपरटेंसिव्स इंक्लूडेड थे। ये भी हो सकता है कि वो इस कारण हो क्योंकि वो उम्र में थोड़े बड़े थे, पर हम जानते हैं कि इस वायरस को बॉडी के अंदर घुसने के लिए एक रिसेप्टर की यूटिलाइजेशन करनी होती है, जिसको हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में भी काफ़ी काम करती है। हम इनफैक्ट उनके ब्लॉकर्स काफ़ी इलाज करते हैं। तो हाइपरटेंसिव्स, डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, जो स्मोकर्स हैं, जो ओबीज हैं, जिनको हृदय रोग या फेफड़े का रोग है, वो सब हाई रिस्क पे हैं इस संक्रमण से। ना ही संक्रमण से ग्रसित होने के लिए, बट ऑल्सो इस संक्रमण का जब बुरा नतीजा होता है वो भी इन पॉपुलेशंस में ज़्यादा होता है। जहाँ पर आ गई विंटर्स की बात या जाड़े की बात, तो जाड़े में वैसे ही फेफड़े के रोग बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हो सकता है हम लोग अपनी खुराक में नमक ज़्यादा लेते हो, तली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हो, घर में हम थोड़ा हडल करके या एक दूसरे के पास बैठते हो। तो काफ़ी प्रिकॉशंस जो कि हम समर्स में ले सकते हैं, जैसे ओपन में जाना, वो विंटर्स में लेना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वेदर जो होता है वो परमिट नहीं करता कि आपको सब काम ओपन में करें। इसके अलावा हमें मालूम है कि हर साल जब कोरोना वायरस नहीं भी था तो भी इन्फ्लुएंजा और बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस विंटर्स में बढ़ती हैं। तो इसलिए विंटर्स हमेशा एक रेड फ्लैग एरिया, रेड फ्लैग टाइम है, जबकि हमें थोड़ा प्रिकॉशन, अपना एहतियात ज़्यादा बरतना है। और एहतियात क्या है? वही है। एहतियात क्या है कि हमें एक दूसरे से दूरी रखना, अपने आप को मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, और ये सब करने में विंटर्स में ज्यादा तकलीफ होती है। इसके ऊपर आ गया पोल्यूशन, और पोल्यूशन के होते हमें पता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होती है। तो जिनके फेफड़े वैसे ही खराब हो रहे हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब हो रहा है पोल्यूशन से या इन्फेक्शन से, उनका तो संक्रमण का रिस्क बढ़ ही जाता है। जी, Dr. Dhal, another question asked by Shantanu Datta. He's saying, my mother is 76-year-old. She was positive without any significant symptoms. She had only cough, which is now 95% cured. She was also COVID negative 3 days back. She has controlled diabetes. She was a cancer patient, completed her chemotherapy 2 years back successfully. She is now perfectly fine. Even in a COVID period, she did not have any problem. Still, she is isolating herself after negative results. Please advise. So the general recommendation which we have been following in the country is about 17 to 18 days after the index positivity, we allow people to come out without being isolated any further. I must congratulate Shantanu because his mother, despite being at high risk, has had a successful recovery, and which only highlights the fact that 50 to 80% of people who suffer from this infection are likely to have a mild or moderate disease. And that's what she has had, so we've been lucky. But that doesn't mean that this should apply to everybody, and we should apply universal precautions. We know that the government has also got very active in the last few days, realizing the rising numbers, and we should protect especially those at high risk, but not just those at high risk, but almost everybody.
Yes. बिल्कुल। इसके अलावा इसमें जो प्रसार को लेकर है उसमें भी बड़े सवाल आते हैं कि जो संक्रमण का प्रसार है किस तरह से हो सकता है, क्या जो एसिम्टोमेटिक हैं वो प्रसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का एक सवाल आया है योगेश भल्ला का, ये कहते हैं कि अगर RT-PCR टेस्ट में जो रेटिंग है 31 है तो भी क्या ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी रेटिंग है वो इस संक्रमण का प्रसार कर सकता है या इसे फैला सकता है? डॉक्टर मिश्रा। देखिए, जो भी व्यक्ति संक्रमित है जिसमें भी वायरस है, वो चाहे सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये वायरस दे सकता है। जहाँ तक ये कि किस प्रकार से फैल रहा है, मेनली जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है और ये जा रहा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। तो जब हम बात करते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं तो जो थूक के छोटे छोटे कण होते हैं उसके साथ वायरस लगा हुआ होता है और वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो विशेष सावधानियों को अपनाएं, मुंह को ढक के रखें और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखें ताकि खुद भी बचेंगे और दूसरे लोगों को भी बचा के रखेंगे। इसी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि अगर ड्रॉपलेट्स निकल भी रही हैं तो कम से कम इतनी दूरी नहीं जा पाएंगी और वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगी और दूसरा आदमी इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो कुल मिलाके में यही कहना चाहूँगा कि यस, एक आदमी से दूसरे आदमी को बीमारी फैल रही है और आप चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, आपको चाहे लक्षण हो या कोई भी लक्षण नहीं हो, अगर आपके अंदर वायरस है और आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को जरूर संक्रमित कर सकते हैं। Right, that's all the time that we have. Professor Dr. Colonel Arnold Hull and Dr. Puneet Mishra, thank you for joining us and for sharing your perspective on combating COVID-19. And before we take your leave, we remind you to keep wearing your masks in public places whenever you step out of your homes and be part of Doordarshan's Mask Up India बिल्कुल याद campaign. रखिए कि कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।